is food can be the best and the strongest medicine that you have, or it can be the slowest form of poison. अगर हमारे मिट्टी में ही वो एलिमेंट्स नहीं हैं, क्यों हम इतना डेस्परेट हो रहे हैं कि हम मल्टीविटामिन की गोली खाएं? अगर हम गोली नहीं खा रहे, हम फिर भी सप्लीमेंट्स ढूंढ रहे हैं। सही बात है। माइक्रोग्रीन्स ढूंढ रहे हैं, स्पिरुलिना का कैप्सूल ढूंढ रहे हैं। Yeah. ये लो तो कैल्शियम मिलेगा, वो लो तो आयरन मिलेगा। ये सब चीजें आपको आपके खाने में मिल सकती हैं। क्या आप केवल एक तरह की सब्जी खा के जी सकते हैं? No, I need more. ब्रोकली इज वेरी न्यूट्रिशियस। आप केवल ब्रोकली खाइए, बीमार पड़ जाएंगे। नहीं हो सकता। डाइवर्सिटी चाहिए प्लेटर के ऊपर। रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए। फॉर नॉन वेजिटेरियंस प्रोटीन्स वो वाले प्रोटीन चाहिए। वो नहीं खा रहे हैं तो कहीं और से प्रोटीन चाहिए। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट मत करो। And I was blown away with his honesty, and I came back sharing with my family, and I was feeling so sad about it because genuinely at that moment of my life I wanted to, do something with nature, get involved with nature. Couple of months later he said कि yes you're right. बोले अगर हम स्क्रैच करते हैं हमें नमी दिखती है 6 इंच नीचे, लेकिन और किसी खेत में वो नमी नहीं दिखती है। I think if you ask about that point in time, it was there in Bharatpur. There was this 7th 8th क्लास का बच्चा जिसको एक दूसरे बच्चे ने मार दिया पत्थर से, and he started bleeding, okay, and the bleeding was so bad that उसकी टी शर्ट पूरी लाल हो गई, and his parents were living next गली, दूसरी गली में रहते थे। तो me and another friend of mine, we kind of helped him with haldi and all, and I quickly changed his t-shirt. मैं अपने घर से एक टी शर्ट लगा करके उसकी टी शर्ट चेंज कर दी ताकि उसके पेरेंट्स आए तो they don't get freaked out with the blood that is in the t-shirt. And and then they took him, he was hospitalized for a few days. All right, welcome to Uzu Darbar. Today I have a very special guest, someone I promise if you walk through the entire podcast will impact your life in a personal level. And I have Ritu with me today, who is a forest whisperer, someone who is passionate about the world of food, the world of forest, the world of plantation, the world of something which has direct impact in everyone's life, food. And we're going to dive deep into something which our society is craving for attention. And hopefully, this entire podcast will inspire you to become your own forest or make you the foresterer of life. I want to start by welcoming Ritu with our ritual with the flute, and then we'll continue the show. All right. So, Ritu, here's for you. Thank you for choosing to come on the podcast today. I met you a few weeks back and I was so happy, so thrilled, and so inspired to look into the kind of work that you have been involved in. And today, I have audience here at Uzu Darbar. I requested you to come on the podcast and you accepted it. So I want to thank you for that. And would request you to kind of briefly introduce yourself to the world, who you are. A lot of people know you, but in my world, I would request you to talk about it and a brief introduction. Thank you so much, Varun. And thank you for giving me this opportunity and opening another dimension. I'm diving deeper with you in your studio. What do I say about myself? This has been an evolutionary journey. I am a scientist by education background, but food is something that affects all of us. And many, many years ago, we started realizing that to borrow from Anne Wilmore's quote, is food can be the best and the strongest medicine that you have, or it can be the slowest form of poison. The fact of today's life is that
it is poison for us. And being an environmental scientist, I was also looking at so many different things that impact us. What is it about food? A, you don't know where it is coming from. Yeah. Yeah? We buy it in packets. We don't know what is there in the packet. How far has it traveled? How many miles? How much of energy has gone into it? So my scientific thinking forced me to think in those terms about food also. It impacts your health, it impacts your psychology. Oh, Right? absolutely. So if the poison is there in what we eat, it impacts our guts, mind, Mental health. life, everything, right? तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. ऑफिस से बाहर आप घर पे क्या कर सकते हैं, सब लोग क्या कर सकते हैं. तो कहाँ से शुरू किया. एक और एस्पेक्ट होता है एनवायरनमेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लेवल पे एड्रेस करना. वेस्ट, हर एक के किचन में वेस्ट निकलता है. तो हमने क्या शुरू किया, हमने किचन का वेस्ट लिया, कंपोस्टिंग शुरू की. कंपोस्ट को ले गए छत पे और वहाँ से अपना खाना उगाना शुरू कर दिया. बट इससे पहले भी एक कहानी थी, जो वो साइंस वाली कहानी थी, which said that soil-less farming is possible. Yeah. So journey starts there, and very quickly I realized कि नहीं, this is not the right way to go. Oh, is it? Yeah. Because a lot of farms in Israel and other places, they have been doing zero soil farming, and they've been growing food. It looks stunning the way the Yes. food looks. I don't know about the nutritive content of it. Can you throw some light on that? Excellent question. I'm glad you asked it. So, जब आप एक आर्टिफिशियल सिस्टम लेते हैं, एक सबस्ट्रेट लेते हैं, मिट्टी नहीं लेते हैं, एक सबस्ट्रेट लेते हैं और उसमें 4 केमिकल डालते हैं. Let me ask you, can your body survive on just that limited Chemicals. Let's call it nutrition, even if it is coming in chemical form. क्या हम उतने में survive कर सकते हैं? Doesn't our body, not just our body, plant body, animal body, everything require much more? Yeah. और अगर तुम ट्रेडिशनली देखो, हम कहाँ से आए, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाना है. Absolutely. वो मिट्टी हमें बहुत कुछ दे रही है. साइंस के टर्म्स में कहोगे तो मे बी 52 मिनरल्स, 51 मिनरल्स, पीपल में कॉन्टेस्ट द नंबर. और हम खेत में क्या डाल रहे हैं, या हम छत में क्या डाल, या वो सॉइललेस फार्म में क्या डाल रहे हैं. 6 मैक्रो मिनरल, 6 माइक्रो मिनरल हो गया. देयर इज अ एस्पेक्ट जो कि इकोलॉजी में, एक फॉरेस्ट को अगर आप स्टडी करते हो, बहुत लोगों ने स्टडी किया है, इंटरकनेक्शंस होते हैं. आई एम रिलेटेड टू यू टू देम, टू द एंटायर वर्ल्ड, थ्रू दिस सॉइल, थ्रू द एयर वी ब्रीथ, through the water we share. Yeah. And there are many other organisms involved here. Yeah. तो हमको हेल्थ कहाँ से मिलेगी अगर हमारे मिट्टी में ही वो एलिमेंट्स नहीं हैं. क्यों हम इतना डेस्परेट हो रहे हैं कि हम मल्टीविटामिन की गोली खाएं. अगर हम गोली नहीं खा रहे, हम फिर भी सप्लीमेंट्स ढूंढ रहे हैं. सही बात है. माइक्रोग्रीन्स ढूंढ रहे हैं, स्पिरुलिना का कैप्सूल ढूंढ रहे हैं. ये लो तो कैल्शियम मिलेगा, वो लो तो आयरन मिलेगा. ये सब चीज़ें आपको आपके खाने में मिल सकती हैं, बट गायब हो गई हैं. वो मिट्टी में ही नहीं रहा. अगर हर एक कोई जो फार्मिंग नहीं भी करता है, वो NPK से फेमिलियर है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरेट एंड पोटेशियम. वाओ, आई नो इट. वाओ, एक्सीलेंट. तो जब 3 चीज खाओगे तो 3 ही वो होगा. राइट. अब इसको मैक्रो स्केल पे देखो, क्या आप केवल एक तरह की सब्जी खा के जी सकते हैं? नो, आई नीड मोर. ब्रोकली इज वेरी न्यूट्रिशियस. आप केवल ब्रोकली खाइए, बीमार पड़ जाएंगे. नहीं हो सकता. डाइवर्सिटी चाहिए प्लेटर के ऊपर. रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए. फॉर नॉन वेजिटेरियंस प्रोटीन्स, वो वाले प्रोटीन चाहिए. वो नहीं खा रहे हैं तो कहीं और से प्रोटीन चाहिए. कलरफुल सब्जी चाहिए, क्योंकि हर सब्जी में हर मिनरल नहीं मिलेगा. किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है. ऑलराइट. सो थैंक यू. मिट्टी में भी वो डाइवर्सिटी आपको चाहिए. आएगा कहाँ से? इवेंचुअली आएगा मिट्टी से. Thank you for setting the tone of the podcast and the very strong foundation. I'd like you to share, what was your professional journey like? Where did you start from, and why you moved into the world of forest and the food?
And before that, my teacher, Ganesh sir, has always been saying this, and I resonate with his thought so much. That progress के नाम पे हमने इतनी progress कर ली है that we have not been able to give ourselves right nutritious food. And that's somehow I think most of us can resonate with. And when I look at my own journey of life, I realize that I resonate with the problem, but I don't know what the solution is. Hopefully, my dive deep with Ritu will give us some input, some access, some ability to be able to take responsibility for our own food and do things which can transform our own health, our family's health, and our community's health. So, extending this conversation, let's dive deep further with eating her brain on the world of food. All right. So, my question to you was, what was your professional journey like? How did it all start? So my professional journey, like I said, environment sciences, and that enabled me to start thinking about these things a little earlier in life than maybe Most of most us. of us. So what happened was, by chance, I ended up at an organization in Delhi which was looking at water, water in our urban environment, ponds, lakes. यहाँ भी होंगे, सतना में भी होंगे, और उनके ऊपर इम्पैक्ट्स हैं, वो गंदे हो रहे हैं. यू हार्डली एवर सी क्लीन वाटर बॉडी. आपको हरी एल्गी वाली, बहुत सारा वाटर हायासिंथ वाला, कवर्ड, मच्छर वाला, वही पानी मिलता है. तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में इन वाटर बॉडीज़ को कैसे रिजुविनेट किया जाए ताकि वो हमारे सोर्स रहें क्लीन वाटर के, पोर्टेबल वाटर के, क्योंकि वही पानी ग्राउंड में जाता है, वही पानी ओवरफ्लो होता है. जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, बहुत अर्बन कॉन्टेक्स्ट में. उसके बाद लार्जर लैंडस्केप्स में देखना शुरू किया, और फाइनली मैंने ये रियलाइज़ किया कि लैंडस्केप में सबसे बड़ा लैंड यूज़ एग्रीकल्चर है, और सबसे बड़ा वाटर यूज़ सेक्टर जो है वो भी एग्रीकल्चर है. सही बात है. तो वहाँ पे वो दोनों चीज़ें क्रॉस करती हैं, मर्ज करती हैं. हम कर रहे थे वेटलैंड इकोलॉजी, रिसर्च भी उसी में किया. तो हाइड्रोलॉजी देखना शुरू किया, और ये रियलाइज़ किया कि जब तक हम एग्रीकल्चर में ये वाटर का यूज़ कम नहीं करेंगे, इस वाटर इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी पॉन्ड, लेक, तालाब, नदी बचाना मुश्किल है. एनवायरनमेंट क्वालिटी एक होती है, एक वाटर फ्लो होता है. भाई नदी में जब पानी बहेगा ही नहीं तो आप उसको बचाइएगा कैसे? कहते हैं ना कि बहता पानी खुद को साफ करता है. उसके लिए पानी को बहना होगा, और पानी को बहने के लिए पानी को वहाँ तक पहुँचना होगा. लेकिन हो क्या रहा है, डाइवर्ट होके सब खेतों में जा रहा है. ऐसा नहीं है खेत में भी कुछ भला हो रहा हो, उसके अपने एक प्रॉब्लम चल रहे हैं. तो वहाँ से करते करते अब कहीं तो एक्सपेरिमेंट करना है, ज़मीन अपने पास है नहीं रेडी अवेलेबल, शहर में काम करते हैं, तो छत थी, वहीं से चालू कर दिया. Wow. It kind of feels very interesting, and I think probably there's a lot of hard work that would have gone in the background. I've had tried farming and kheti, and I failed a couple of times. One of my experience was I wanted to do stevia at 5 acres land. Unfortunately, that's a tragedy of the world of commerce. There was a company based out of Jaipur who were my consultants, and they said, Varun, we'll help you. And I'm like, okay. There was I think an investment around 8 to 9 lakh rupees. And I kind of advanced around 4 lakhs as an investment in the project. And we were just about to, do the seeding part of it, or the saplings would come from Jaipur and just plant them. So one of the employee, who came from Jaipur, I treated him like my brother, really well. And over the dinner, he said, sir, I want to say something to you. Like, tell me. He said, sir, ab ye project mat karo. I'm like, why? My boss is bluffing you. This project is going to be failed. And because it's like buyback offer, but you know what? What will he buy back? होगा ही नहीं. वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं. और क्योंकि आपने मेरे को इतने अच्छे से ट्रीट किया है, मैं रोजी रोटी है मेरी, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट मत करो. And I was blown away with his honesty, and I came back sharing with my family, and I was feeling so sad about it, because genuinely at that moment of my life I wanted to do something with nature, get involved with nature, but I did not have the guidance. And I think few years down the line you are here with that
think maybe intuitively the nature has connected us, because that purity of heart that I had at that time, that I genuinely wanted to connect with nature and do something. And today we're probably going to be sharing with the audience also that we're launching something together. Is all divine intervention, Yeah. and I'm, trust me, this was not a part of my recall during the podcast ki main aisi koi baat karunga, but it's just occurring to me ki Yeah. how now things are unfolding, and हाँ. it's brilliant how it's just happening to me in this moment. Ritu, I'd like to to tell me, how did you fall in love with soil? What was like that moment, or that plant, or that person who influenced you to fall in love with soil? What was it about? What was that thing? ऐसा कोई एक इवेंट नहीं था, जैसे मैंने अभी बताया, जर्नी शुरू हुई सॉइल लेस थिंकिंग से, Got it. बड़ी आर्टिफिशियल, साइंटिफिकली एडवांस्ड, और ये समझ में आया कि कब तक आप केमिकल घोल के डालोगे। फिर कंपोस्टिंग की, और जब मैं रिसर्च कर रही थी, मेरे रिसर्च का काम भरतपुर के आसपास था, जो मेरे फील्ड असिस्टेंट थे, हमने पानी का डिस्कशन तभी शुरू कर दिया था क्योंकि ड्राउट ईयर था। मैंने उनसे कहा, उनका नाम गोविंद है, कि भैया आप लोग इतना खेती के लिए पानी निकाल रहे हैं, आगे क्या होगा? यू आर गोइंग डीपर डीपर, बोरवेल पहले 30 फुट में था, अब 100 फुट में चला गया है, इससे ये तो फ्यूचर नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो उन लोग का जवाब उस वक्त था कि मैडम साहब, आज का तो हम देख लें, कल की कल देखी जाएगी। अब इसी थिंकिंग में शॉर्ट टर्म, क्योंकि विजन नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं है, लेकिन उस सब डिस्कशन के बावजूद ये था कि वो बोले कि आप जब भी रेडी होंगे इस इशू को एड्रेस करने के लिए, आई विल गिव यू माई फील्ड। ओके। एंड 10 years later when I actually came round to ये सॉइल लेस, सॉइल वगैरह करके, कि अब खेत में करके देखा जाए, इट वाज अगेन फ्रॉम अ वाटर पर्सपेक्टिव कि पानी बचाना है। ओके। क्योंकि मेरा फोकस पानी था, पानी बचाना है और खेती में पानी बचाना है, अब कैसे बचाना है करके देखना पड़ेगा। सो उनसे फिर से बात हुई कि तब तक तो हम भरतपुर में नहीं थे। सो बोले हाँ बिल्कुल, आपके लिए है वो एक प्लॉट ऑफ लैंड, करीब 1 एकड़ का था, कि आप जैसा बताएंगे, जैसा करना होगा हम करेंगे। फिर उन्हें कन्विंस करना है, तो वो भी फार्मर, काफ़ी बहसबाजी भी हुई, काफ़ी देर तक डिस्कशन होता रहा। ये हम साइंस के एंगल से समझा रहे, वो प्रैक्टिकल एंगल से समझने की कोशिश कर रहे। फाइनली उन्होंने कहा कि साहब आऊँग अपने वाली ज़मीन चाहिए ना, बन जाएगी। वो क्या, देखिए कॉन्वर्सेशन में ही वॉज एड्रेसिंग द इशू ऑफ कॉम्पैक्शन इन लैंड। आप किसी भी खेत में जाइए, ऊपर 4 इंच जहाँ जुताई होती है बस वो सॉफ्ट है, उसके नीचे तो मिट्टी पत्थर हो रखी है। जब रूट को कहीं जाने को ही नहीं है तो पौधा कैसे पनप पाएगा? इट इज़ दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन आई सॉ थिंग्स हैपनिंग। पहले उन्हें कन्विंस किया, तो कहा कि भाई गर्मी में जुताई ना करो, सब सूख जाता है, पानी उड़ जाता है। और फाइनली हमने उनसे कहा कि हमारे कहने से आप ऑब्जर्व करिए, केवल ऑब्जर्व, नथिंग एल्स। एंड कपल ऑफ मंथ्स लेटर ही सेड कि यस यू आर राइट। बोले अगर हम स्क्रैच करते हैं हमें नमी दिखती है 6 इंच नीचे, लेकिन और किसी खेत में वो नमी नहीं दिखती है। आई थिंक इफ यू आस्क अबाउट दैट पॉइंट इन टाइम, इट वाज देयर इन भरतपुर, एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड। धीरे धीरे करते करते बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कई एक एग्जाम्पल्स हैं। और पैरेलली कंपोस्टिंग की जर्नी चल रही थी कि सॉइल में हेल्थ कहाँ से डालेंगे आप, एंड दैट होल थिंग, इट इज़ वन हेल्थ। अगर मिट्टी हेल्दी है तो हम हेल्दी हैं। प्लांट्स एंड माइक्रोब्स प्ले अ ह्यूज लॉट। इट्स द सेम विद आवर गट्स। अगर माइक्रोब्स नहीं है सही क्वांटिटी में, सही बैलेंस में, देन यू आर नॉट हेल्दी। And our gut mimics the gut of the earth, which is the soil. And the vice versa. And the vice versa. One feeds the other. Yeah. सब लोग इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, अकेले कोई भी एक साइलो में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हम और आप इकट्ठे काम करेंगे तो कुछ कर पाएंगे, अकेले अकेले भागेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, हम नहीं कर पाएंगे। तो इकोलॉजी उसी तरह से इंटरकनेक्टेडनेस है, वन डिपेंडेंट ऑन द अदर। बचपन में एक फूड चेन और फूड वेब पढ़ा होगा स्कूल में, हर बायोलॉजी की किताब में होता है, तो वो वेब है। ऑल्दो ऐसे पिरामिड शेप में दिखाते हैं, बट इट इज एक्चुअली सर्कुलर। It's a circular. Everything goes round and round. It is cycling. Yeah. And
as a unit, though there are different units, but they all coexist with each other. So Yes. the entire thing is one unit in a way, Yes. right? Like Yes. we as human beings are one unit, but inside there are so many, you know, microorganisms which are kind of coexisting within. So with that context. So तुमने जैसे अपने अपने करियर में अपने प्रैक्टिस में देखा है एवरी पर्सन हैज अ पोटेंशियल लेकिन वो पोटेंशियल अचीव नहीं हो रहा योर रोल इज टू Enable that. Yeah. That's exactly how I look at land and soil. There is a potential, but वो अचीव नहीं हो रहा है. So I become the enabler by God's grace. Got it. You know, this very interesting term that you use called food forest, right? And lot of, like, for example, me, I'm really confused the very definition of food forest. And so can I request you to kind of simplify it for the world and simplify it for me also? And because forest लगता है कि वो 10 एकड़ होगा 50 एकड़ होगा तभी मैं forest बना पाऊंगा. And when you said, you know, मेरे छत में food forest है, I'm like, dude, छत में forest कैसे हो सकता है, you know? And so tell me more about food forest and you know, your interpretation of the word food forest. So here I would like to also mention I'm a permaculture practitioner. Yeah. I'm also a permaculture educator. तो पर्माकल्चर में एक बहुत बेसिक फंडामेंटल वो है. किसी से भी जो लोग पर्माकल्चर करते हैं उनसे भी अगर आप डेफिनेशन पूछेंगे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे. इट्स हाउ यू परसीव इट. बट अगर एक सेंटेंस में बोलना होगा, वर्क विद नेचर रादर देन अगेंस्ट इट. आपने अभी जो अपना स्टीविया वाला एग्जांपल दिया, दैट होल सिस्टम इज वर्किंग अगेंस्ट नेचर. यू आर नॉट वर्किंग विद नेचर. व्हेन यू वर्क विद नेचर थिंग्स हैपन. वही इंटरडिपेंडेंस है, सब चीज़ें मिल के काम करती हैं. लेकिन जब आप मोनोकल्चर कर देंगे एक ही तरह का, अर्थ पे केवल ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो ही ना, प्लांट्स हो ही ना, कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल. अ ह्यूमन मोनोकल्चर. अर्बन सिटीज़ में क्या हो रहा है? इट्स अ ह्यूमन मोनोकल्चर. इसलिए प्रॉब्लम हो रही है. सही बात है. तो अब आप नेचर के साथ काम करेंगे. लुक अराउंड यू, नेचर कहाँ पनप रहा है? फॉरेस्ट में. और फॉरेस्ट का एक सिस्टम है. वो सिस्टम है इंटरडिपेंडेंस. वही फूड वेब होता है. तो एक ही तरह की चीज़ें नहीं हैं, हर तरह की चीज़ें हैं. उनका सॉइल से एक डायरेक्ट रिलेशन है. सॉइल इज फीडिंग द प्लांट्स, प्लांट्स आर फीडिंग द एनिमल्स एंड वाइस वर्सा. प्लांट की जो रूट है वो सॉइल को फूड फीड कर रही है, वहाँ माइक्रोब्स हैं. तो सब एक दूसरे का खाना है, एक लूप बना हुआ है. चलिए फॉरेस्ट है, ह्यूमन फूड नहीं प्रोड्यूस कर रहा, लेकिन अपने बाशिंदों का सारा खाना प्रोड्यूस कर रहा है. छोटे से छोटे कीड़े से लेके बड़े से बड़े टाइगर तक सब है वहाँ पे. सब है और सबका खाना है. इट्स अ सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम. तो इस चीज़ को आप सीख लीजिए फॉरेस्ट से. और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं फॉरेस्ट के, हेल्दी सॉइल, मॉइस्चर, पानी, हवा. हवा माने मिट्टी के अंदर भी हवा होनी चाहिए. जैसे जो गोविंद ने उस वक्त कहा था, कॉम्पैक्शन नहीं होना चाहिए. हवा अंदर तक जानी चाहिए. उनको भी सांस लेनी है, हमको भी सांस लेनी है. वो अच्छी सांस लेंगे तो हम अच्छी सांस लेंगे. फाउंडेशन वही है नीचे सब. तो आपको वो चाहिए. फिर फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी होती है, लेयर्स होती हैं. बड़ा पेड़ होता है, छोटा पेड़ होता है, श्रब होती है, हर्ब होता है, घास होती है. उसी तरह से जो हम खाना खाते हैं उसमें छोटा प्लांट होता है, पालक जैसा, मेथी जैसा, टमाटर जैसा थोड़ा बड़ा होता है, और मुनगा या सहजन जैसा बड़ा पेड़ भी होता है. मैंने आम जैसा भी तो होता है. आम जैसा भी होता है, चाहो तो वो भी लगा लो छत में. अच्छा. नींबू भी होता है. हाँ. सो आपको उस तरह से सोचना है कि फॉरेस्ट की एक सबसे ऊंची लेयर है, कैनोपी लेयर जिसको बोलते हैं. उस साइज का हम क्या लगा सकते हैं उससे नीचे, और जो आपस में बातचीत करें, इंटरडिपेंडेंस हो. हम और तुम लड़ते रहेंगे तो इकट्ठे नहीं कुछ कर पाएंगे. कुछ पौधे हैं जो इकट्ठे नहीं भी हो पाएंगे. कहीं कंपटीशन भी होएगी, कहीं रूट में कंपटीशन होएगी, कहीं लाइट के लिए होगी. तो उन चीज़ों का ध्यान दीजिए. सबको धूप मिलती रहे, सबको हवा मिलती रहे. एंड दैट्स द डिज़ाइन इज अबाउट. दैट इज़ व्हाट फूड फॉरेस्ट इज. इट्स नॉट अ फॉरेस्ट इन टर्म्स कि बहुत सारे पेड़ हैं और जानवर घूम रहे हैं. आई गेट द एनालॉजी. या वो फॉरेस्ट के सिस्टम को कॉपी करेगा. सो जो नाउ नेचुरल सिस्टम है फॉरेस्ट का, हर Yeah. चीज़ साइकिल करती है. आपने किचन से वेस्ट लिया, खाद बनाया, खाद को में थोड़ी मिट्टी डाली, पौधा उगाया. उसमें से टमाटर प्याज जो भी है वो खा लिया, लेकिन बाकी तो और रेजिड्यू है ना,
वो वहीं वापस जाएगा, Hmm. उससे और पनपेगा। धूप है, फोटोसिंथेसिस, दीज आर सोलर पैनल्स। सोलर लाइट हम कैप्चर करते हैं, बचपन में पढ़ लेते हैं, ये तो 5वीं 6वीं में ही पढ़ लेते हैं ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, ग्लूकोज बनाता है, वो स्टोर हो जाता है, वो हम खाते हैं। सही बात है। उसको कैसे मैक्सिमाइज करोगे? जब ये लेयरिंग होती है तो धूप वेस्ट नहीं होती। धूप पड़ रही है, हरे पत्ते पे पड़नी चाहिए, चाहे वो घास का हो और चाहे वो फूड का हो। अगर मिट्टी पे पड़ा तो वेस्ट हो गया, उसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। जो कुछ यहाँ हो रहा है उसको वापस उसी मिट्टी में डाल दीजिए, सिस्टम Okay. खुद ब खुद रिजेनरेटिव बन जाता है। I'd like to audience to know that Ritu has created her own urban food forest at her own residence, which is around 800 square feet, basically 1000 square feet area. But because of walking and area, I think 750, 700 के आसपास वो cultivable land में छत के ऊपर ही she has grown a food forest. I request you to talk more about it and how you started. What was the journey like? And how many years now since you have that food forest? And also, one thing that I was fascinated by her conversation earlier was she has n number of tomato varieties and she extracts around 50 to 60 kgs of tomato from Italian varieties to I don't know whatnot. She'll tell about it. And I'm like, dude, as a chef, my palate was going all crazy, wow, पता नहीं अलग कितना मजा आ रहा होगा. So we'll request her to talk more about it and also endless herbs varieties as well. So Ritu, all yours, please talk about it. So कुछ शौक कह लो और कुछ साइंस कह लो। Okay. तो डाइवर्सिटी चाहिए, जैसे अभी मैंने पहले भी बोला। तो डाइवर्सिटी कई लेवल पर होती है। डाइवर्सिटी एक तो हुई कि भाई पेड़ है, पौधा है, श्रब है, घास है। फिर फूड की डाइवर्सिटी चाहिए, उसके बिना हम हेल्दी नहीं रह सकते। और शौक में अब ये आया कि भाई टमाटर लगाने हैं तो हमको पिंक भी चाहिए, रेड भी चाहिए, येलो भी चाहिए, हर तरह का टमाटर चाहिए। पिंक टमाटर तो मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब होता है पिंक टमाटर? बिल्कुल होता है, हम आपको खिलाएंगे इस साल। लगाएंगे, पौधा भी देंगे, आप खुद लगाइए और उसको चीज़ के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। Okay. एंड पेयर शेप होते हैं, ग्रेप शेप होता है। हम तो केवल 2 ही शेप जनरली जानते हैं। और हम करी वाला टमाटर जानते हैं या सलाद वाला जानते हैं। और इसी तरह से हर चीज़ में वैरायटी होती है। सो देन हर्ब्स, शायद मैंने आपको बताया पालक, 10-12 साल हो गए होंगे हमने पालक नहीं खरीदी। होता क्या है, जब आप अच्छा खाना खाने लगते हो तो आपकी बॉडी उसको एक्लेमेटाइज कर लेती है एंड यू बिकम सेंसिटिव। सो नाउ आई एम सेंसिटिव। अगर बाजार से पालक खरीदा, मुझे वो पेस्टिसाइड की स्मेल आती है, इसलिए मैं नहीं खा पाती हूँ। अनलर्निंग हो गई ना, सेंसेस की अनलर्निंग हो गई कि पहले वही खाते रहते थे तो पता नहीं चलता था। यू आर यूज्ड टू इट, यू आर यूज्ड टू दिस रूम, यू आर यूज्ड टू द स्मेल्स एंड द कलर्स ऑफ दिस रूम। वही खाने के साथ होता है, वी गेट यूज्ड टू इट, चाहे वो पैक्ड फूड है। Yeah, but Ritu, we kind of diverted a little bit. My focus was, how did you start this food forest? What was it like? Tell the first initial steps and how. So initial step was here कि the realization that the food we are eating is not good. When did that happen? Maybe 15 years, 20 years. So it's 15 years since you've been growing this food forest? Yes. 15 years. 15 years. Wow, long journey. So what was your first step? 15 साल पहले वही soilless वाला था। अच्छा। फिर कंपोस्ट हुआ। फिर कंपोस्टिंग के बाद ये सोचा कि कहाँ छोटे छोटे उसमें करते रहेंगे, तो हमने छत को वाटरप्रूफ करा दिया। Okay. ताकि फैला सको अपने आप को। Okay. वो ज़रूरी नहीं है, बट कर लो तो अच्छा है। और बस उसके बाद में इट हैज़ बीन अ रीजेनरेटिव थिंग। So कितना मोटा लेयर्स ऑफ सॉइल है आपके उसमें, और ये गमलों में लगा हुआ है आपका? बिकॉज आई हैव हर्ड आपने शायद आम का पेड़ भी लगाया हुआ है वहाँ पे, राइट? और नहीं, आम का नहीं है, बट हाँ नींबू है, नींबू का पेड़, ओके, मुनगा, अच्छा, हाँ, सहजन, कुछ वाइल्ड ट्रीज भी हैं, okay. जिसको यहाँ पे सिरसा बोलते हैं, एल्बीजिया, okay. वो भी है। और चिड़िया कुछ एक बीज ले आती है हर साल, oh, वो भी होते रहते हैं। सो एक छोटा बरगद भी है। ओके, बरगद छत में, that's a हाँ, सो इट्स अनदर स्टोरी, अभी लेट्स नॉट डाइग्रेस। सो हाँ, सो 15 साल पहले ऐसे धीरे धीरे शुरू किया, मिट्टी बनने लग गई क्योंकि कंपोस्ट करना सीख लिया। पहले सोचा था कि सॉइललेस करेंगे, बट बहुत जल्दी, जैसे मैंने कहा, बहुत जल्दी रियलाइज किया कि नहीं, बिना मिट्टी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट वाज माय यूरेका थिंग कि नो, मिट्टी इज द एसेंस, इट इज द एसेंस।
सो आपका क्वेश्चन था कितनी डीप? 8 इंच उसमें पेड़ हो रहा है. There's a beautiful hibiscus, I'll share some pictures, जो कटिंग से खुद ही बनाया था. नहीं मिट्टी है, 6 से 8 इंच. उस मिट्टी में वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारे मिनरल्स, वो सारे माइक्रोब्स जो कि विटामिन्स बनाने के लिए, जो कि हमारे खाने को अच्छा बनाने के लिए उसमें होना चाहिए. So it is not the quantity, it is the quality that matters. बट कपल ऑफ मिनट्स बैक यू टॉक्ड अबाउट ना कि वो जो फार्मर थे उस इसके नीचे ऑल हाँ. पत्थर था तो उसको जगह चाहिए जाने के लिए. हाँ. तो आपके छत में कैसे वो जगह ढूंढ लेते हैं So इफ इट इज जस्ट ओनली दिस मच? so when it is this much, आपकी जो पौधा है उसकी रूट डेंसिटी बढ़ जाती है. अच्छा. जैसे ऐसे स्कूल में पढ़ा होगा, एक टैप रूट होती है, उसके साइड में और रूट्स निकलती है, उसमें रूट हेयर होते हैं. तो जब पौधे को वो मटेरियल वहाँ पास में मिल रहा है तो दैट मच ऑफ रूट इज एबल टू टेक एवरीथिंग. ओके. कंपेयर्ड टू अ फार्म लैंड जिसमें ऊपर 4 इंच के बाद एकदम रूट जाने की जगह ही नहीं है, वो इतना हार्ड हो गया है. और जो वो 4 इंच भी है उसमें तो हमने एनपीके डाला ना केवल, तो कहाँ से आएगा मिनरल आपके पास? कहाँ से आएगी वो ताकत, वो हेल्थ? इट्स नॉट जस्ट मिनरल्स, सो मेनी अदर थिंग्स. मतलब कंपोस्ट जो आप डालते हो वो बिकॉज इट हैज ऑल द It has all the things. Why does it have all the things? Because it is coming from my kitchen. And I've inoculated in a manner. तो जब हम वो करते हैं और आपको मिट्टी अच्छी बनानी है, जैसे दही में जामन लगाते हैं, इतना दही बनाना है तो जामन इतना ही चाहिए बस, बहुत तो नहीं चाहिए. तो वो जो छोटा सा जामन है वो मैं फॉरेस्ट से लेकर आती हूँ. जो फॉरेस्ट की फ्लोर की मिट्टी होती है, जो पत्तों की लेयर पड़ी रहती है, जहाँ धूप नहीं लगी होती, डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होता है, वहाँ से केवल 2 मुट्ठी मिट्टी लाइए, इनोकुलेट करिए. वो जो माइक्रोब्स हैं वो जब पनपेंगे, जब दही जम जाएगा, अरे बाप रे. तब मैंने मजा तो ऐसे आएगा. कभी देखा ही नहीं इस तरीके से इस एनालॉजी से. लाइक सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. तो आपको दही जमाना है, चाहे खेत में, चाहे छत में, चाहे छोटे से पॉट में. वाओ. भाई बहुत से लोग हैं केवल बैल्कनी स्पेस है, आप पॉट में लगाइए, आप अपने. तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है जैसे कर्ड में हो जाता है पूरा, तो वो या. ओह अच्छा. ओके. जो खुशबू होती है, जो पहली बारिश की खुशबू होती है, वो मिट्टी की खुशबू है. वो तभी आएगी जब आप दही जमाएंगे. Okay. My next question to you is, looking at the condition with the society is moving, and the kind of current ecosystem, do you think everyone should take responsibility of growing their own food? Because आज अच्छी सब्जियां तो नहीं मिल रही हैं. We keep hearing a lot of stories from the internet and also self-observation that the nutritive content, because of insecticides and pesticides, it's becoming poisonous. So my question is, do you think everyone should take the responsibility of growing their own food, and is it really possible to do it? And the next question is, it kind of looks very cumbersome. I am busy with my stuff. I don't have time to, go around cooking, and cooking though still is okay, but growing my food is like sounds like such a cumbersome thing. That too being in Delhi or wherever. So please throw some light on that. So तुम्हारा पहला सवाल कि शुड वी बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए? जवाब तुमने खुद दिया. हमारे फूड में, फूड इज़ पॉइजन, इट्स नॉट मेडिसिन. जो हम खाना हमको मिल रहा है वो पॉइजन है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं. क्या हम सबको मालूम है कि जो खाना हम बाज़ार से लेकर आ रहे हैं, चाहे वो पालक है, चाहे वो टमाटर है, उसमें कितना पॉइजन गया है, कितनी बार गया है, किस तरह का गया है, और वो हमको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? सिस्टमिक पॉइजन्स हैं जो धो के नहीं जाते हैं, वो उस टमाटर में या फ्रूट में या पत्ते के अंदर है, वो तो हमारे अंदर ही जाएगा. फॉर दैट रीज़न या तो आप अपना थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई 100% खाना उगा सकता है, नहीं पॉसिबल है. हर एक का अपना एक करियर पाथ है, एक लाइफ है, एक फैमिली लाइफ है, लेकिन हम कहीं से शुरुआत कर सकते हैं. थोड़ा बहुत तो हम लगा सकते हैं. हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉइजन हमारे फूड ग्रुप में से किस में से आ रहा है. लेट्स से कि क्योंकि पत्ते, हर कोई कहता है कि हरी सब्जी खाओ, साग खाओ, लेकिन हमने क्या ये रियलाइज़ किया है, क्योंकि जब हम पत्ते खाते हैं तो वो तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं. सही बात है. वो तो डायरेक्ट पॉइजन हमको बहुत मिल रहा है ना. तो अगर कम स्पेस है, कम टाइम है,
दो में से कोई भी चीज़ की कमी है, हमको अपनी लिमिटेशन देख के चलना होगा. सो इफ यू कैन ऑलवेज ग्रो समथिंग इन अ पॉट, थोड़ा बहुत तो हम सब कर सकते हैं, हाँ. पूरा भले ही ना कर पाए. तो अगर हम 1% 100% खाना खा रहे हैं, उसमें से 1-2% से शुरू करिए. ओके. खुद से हाँ, इंटरेस्टिंग. 1-2% आप सोर्सिंग करिए, आप किसी ऑर्गेनिक फार्मर से दोस्ती कीजिए, उनसे डायरेक्ट खरीदिए. आप बाजार के थ्रू क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि कन्वीनियंस. ओके. मैं दिल्ली के पास रहती हूँ, ब्लिंकिट है, भूल गए, लो भैया फ़ोन उठाया, टक 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 5 मिनट में आ रहा है. टेल मी दैट. लेकिन कभी पलट के देखा है वो लेबल पे क्या क्या लिखा है? आज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, घर में आप बैठिए, जो चीज़ आप सबसे कॉमन खाते हैं, बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, मैगी हुआ, कुछ भी जो बहुत कॉमनली घर में आती है, रेगुलरली आती है. जितनी बार आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो या ब्लिंकिट करते हो या स्विगी करते हो, एक बार देखो कि वो जो उन्होंने मैंडेटरी लिखा है लेबल के पीछे, कितने वर्ड्स फेमिलियर हैं. अगर वो वर्ड फेमिलियर होगा उसको, तभी तो आप समझोगे कि ये है क्या, सही बात है. कहाँ से आया है और मेरे बॉडी में जाके क्या करने वाला है. कुछ साल पहले मैगी को लेके बड़ा हल्ला हुआ था, MSG. उसके बाद टेस्ट मेकर आ गया, बात तो वही हुई. भाई एक तरह का पॉइजन नहीं, दूसरे तरह का पॉइजन. प्रिजर्वेटिव्स हैं. प्रिजर्वेटिव का मतलब ये है कि वो आज आपको नहीं मालेगा. इज दैट स्लो पॉइजन? फ्रेश खाना कहाँ से लाओगे? तो वो एक एफर्ट, और केवल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए. आप ज़्यादा खाना मत उगाइए, एज अवेयरनेस उगा लीजिए. जब वो पौधा रहेगा आपके सामने तो दो चीज़ें होंगी. एक, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मेरा खाना, मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, क्योंकि क्वालिटी इज़ इन योर हैंड. आपको एब्सोल्युटली पता है कि उस मिट्टी में क्या गया है, पानी कहाँ से आके गया है. तो आपको ये पता है कि वो बिल्कुल पॉइजन फ्री. इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ मेडिसिन, द कोट आई स्टार्टेड फ्रॉम. जी. नेक्स्ट, आपके आसपास वाले सब अवेयर हो रहे हैं. सही बात है. और And जैसे उसका जैसे फिर अवेयरनेस हाँ. बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपका एफर्ट बढ़ेगा कि हाँ, मुझे कायदे का खाना खाना है. Got it. Very, very powerful. डूएबल, नॉट डूएबल, हाँ, सीखना पड़ेगा. अगर अंदर से आवाज़ आती है कि मैं करूँगा, तो आप एक छोटे पॉट से शुरू करो. आप अपने आप को मत फैलाओ. जब लगे कि हाँ कर सकते हैं, तब आगे बढ़िए. Okay. रितु, अब आप थोड़ा सा ऑडियंस को बता सकते हो व्हाट काइंड ऑफ यू नो knowledge, services that you offer to the world in current circumstances and current situation. Like for example, talk about some of your recent projects. Also, you know how what can the world get from you? You know, either ways. मैं जो बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप कैसे लोगों की मदद करते हैं, क्या ऑफर करते हैं आप? सो मदद हर किसी की, हाँ. जिसको ये अवेयरनेस आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, छोटा सा इंटरेस्ट आ जाए. और मदद सबसे पहले जो मैंने बोला कि आप कहीं से शुरू करो. अब कैसे करोगे वो तो नहीं मालूम, वहाँ मैं आपसे आपकी मदद करना चाहूँगी. ऑनलाइन, ऑफलाइन, आप जो भी सीखना चाहते हैं, जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सीखिए. इंग्लिश में एक फ्रेज़ होता है ना कि टीच अ मैन टू फिश रादर दैन गिव हिम अ फिश टू ईट. तो पहला चॉइस तो यही है कि सीखिए. सीखने से क्या है, कैपेसिटी बनेगी. आप आज सीखेंगे, आप कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग करेंगे, आगे भी 4 लोगों को सिखा पाएंगे. सो ट्रेनिंग, आइदर यू कॉल इट कैपेसिटी बिल्डिंग और यू कॉल इट ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स. जैसे भी चाहिए. लेट्स से कि अगर अर्बन लोग हैं, हम छत पे या बालकनी में करना चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे. 3 दिन इकट्ठा बैठ के काम करते हैं, मिट्टी कैसे मिक्स करनी है, बीज कैसे लगाना है, पौधा कैसे उगाना है, कौन सा पौधा आपको आप महीने भर में हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, कौन सा पौधा 3 महीना लेगा, कौन सा पौधा 6 महीना लेगा, वो अपन बैठ के सीख लेंगे. तो सबसे पहला जो हेल्प है या जो सर्विस है वो है सिखाने, एजुकेशन, ट्रेनिंग. नाउ सेकेंड, यू वांट टू डू इट, लेकिन आप फंसे हुए हैं अपने काम में, आप एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेंटेन कर सकते हैं या करवा सकते हैं. तो प्रोजेक्ट कि आप बुलवाइए, आप कहें कि आइए हमारे यहाँ सेट कर दीजिए, आगे हम कर लेंगे. और उसके बाद थोड़ा हैंड होल्डिंग तो रहेगा कि कब क्या करना है. सो वो प्रोजेक्ट बेसिस हो गया, हम आपको करके दे देंगे. आपकी छत है, बैल्कनी है, फार्म है, जो भी है, तो उस तरह से.
Can you share any of your success stories or the projects that you have done for people? सो करेंटली फार्म लेवल पे इस साल बहुत बारिश हो रही है, अच्छी हो रही है। बे इंतहा हो रही है, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। फ्लड सिचुएशन हो गई है, आधे से ज़्यादा खेत में पानी भरा हुआ है। क्यों भरा है? हमारा सोइंग सीज़न निकला जा रहा है, देर हो गई, मट्टी ठंडी पड़ गई, अब बीज नहीं लगा सकते, या पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए बीज नहीं लगा पा रहे हैं। अभी फिर से बारिश हो रही है, उम्मीद कर रहे थे 10 दिन खुल जाए, या टिपिकल बुंदेलखंड बघेलखंड में घाम लग जाए तब फिर आगे काम करें। अब घाम आ ही नहीं रही। अब इस स्थिति में क्या है, कभी फुर्सत हो तो आप आके देखिएगा भी। वो जो मैं कह रही थी वर्किंग विद नेचर, आप प्रकृति के साथ काम करोगे तो प्रकृति भी आपको मदद करेगी। रेजिलियंस, ऐसा एक्सट्रीम इवेंट को झेलने की ताकत उन खेतों में है जहां हम काम किए हैं। फेंस है, एक तरफ कन्वेंशनल फील्ड है, मिट्टी बह रही है, अगर ढालू खेत हैं तो मिट्टी बह गई, नहीं तो पानी खड़ा हो गया। दोनों केस में आप काम नहीं कर सकते। हमारे खेतों में पानी चला गया अंदर, पौधा उग रहा है, कोई इरोजन नहीं है, कुछ नहीं है। So that is the difference, and that is the difference you and I together can bring about. वो resilience क्या है? So most of your projects happens in Delhi or Pan India, or how is it right now? मैंने अपना फुल टाइम जॉब अभी करीब 1 सवा साल पहले क्विट किया था, और अब मैं खेतों पे फोकस कर रही थी। तो ज़्यादातर अभी यही इलाके में है, बुंदेलखंड बघेलखंड। हमने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जो हम देहरादून में करने वाले हैं। 15 अगस्त इज़ आवर लॉन्च Okay. सॉर्ट ऑफ थिंग। उससे पहले मैंने किसानों के साथ बहुत काम किया, वो भी इसी एरिया में। भरतपुर मैंने आपको मेंशन किया, उस एरिया में। सो आई वुड से ज्योग्राफी इज़ नॉट द लिमिट। Okay. कहीं पे भी आप कर सकते हो, कहीं पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आई एम अवेलेबल। अगर हम कमिटेड हैं अपने काम के लिए तो हम कहीं पे भी जाके करते हैं। यू आर कमिटेड टू योर वर्क, यू ट्रैवल, Yeah, I do. इज द सेम थिंग। ईच वन ऑफ अस डू दैट। यदि आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि यदि आपको एक अथॉरिटी दे दी जाए कि यू आर अ डिसीजन मेकर फॉर सतना और फॉर मुंबई और फॉर दिल्ली, एज सिटी डिज़ाइनर, व्हाट कॉन्क्रीट एक्शंस आप क्या करेंगे उस शहर के लिए? इट्स अ लिटिल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वैसे तो, पर स्टिल। नो, इफ आई हैड द अथॉरिटी, हाँ। घूम फिर के बात वही मिट्टी पानी पर आती है। अच्छा। आपने छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, कोई भी शहर हो, अर्बन फ्लडिंग, इतनी सी बारिश हुई इतना पानी इकट्ठा। तो एक वो डिज़ाइन एलिमेंट है जो अर्बन डिज़ाइन में आना चाहिए। Like Gurgaon keeps getting flooded all the time. Don't interfere with the flow of nature. Work with nature, don't go against nature. गुड़गांव का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिन एरियाज में पानी बहता है, क्यों? क्योंकि अरावली से पानी उतर के आता है वहाँ पे, और वहाँ से बह करके आगे नदी में जाता था। अगर हम उसके बहाव के रास्ते में बिल्डिंग बना देते हैं, रोड बना देते हैं, तो पानी रुकेगा ही। अगर रुक गया तो कम से कम धरती के भीतर जाए। वहाँ तो हमने कंक्रीट बिछा दिया, तो नीचे भी नहीं जा रहा है। तो ना नीचे जा रहा है ना आगे जा रहा है, रुकेगा ही ना। तो एक वो एस्पेक्ट कि हम उसको एड्रेस करें। पोरस बनाइए, सरफेसेस पोरस बना दीजिए, और कुछ मत करिए। हम तो अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने के लिए भी कंक्रीट बिछाते हैं। गाड़ी कच्चे में नहीं खड़ी हो सकती क्या? हो सकती है। तो ऐसे सवाल हमको पूछने होंगे। लेकिन ये हुआ अर्बन डिज़ाइन, एक लार्ज स्केल गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, वो लोग करेंगे। इंडिविजुअल तो नहीं कर पाएंगे इसको। राइट। इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है? हर शहर की, हर गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि कई तरह से एड्रेस भी की गई है। वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा, वेस्ट को सेग्रीगेट करना। पॉलिसीज़ आई हैं, लॉज आए हैं, सब कुछ आया है कि कूड़ा को आप अलग अलग कीजिए, प्लास्टिक को एक कंटेनर में रखो, बायोडिग्रेडेबल को एक रखो, कांच वगैरह अलग करो। लेकिन कोई करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको ये नहीं बताया गया, ये उसको रियलाइजेशन नहीं है कि वो एक छोटा सा एक्ट सेग्रीगेट करने का
आगे कितनी लंबी जर्नी तय करता है और कितना एक, वो कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं ना, एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, फोड़ सकता है। अगर चने को पता हो कि मैं बाढ़ फोड़ सकता हूँ या फोड़ रहा हूँ या मेरे एक एक्ट से ये होगा। समथिंग सिंपल, अगेन मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। 15 साल हो गए या शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, इट्स डिफ़िकल्ट टू रिकॉल। हमारे घर से कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको गीला कूड़ा या वेट वेस्ट बोलते हैं आम भाषा में, बाहर नहीं गया है। कंपोस्ट होता है, छत पे जाता है। कंपोस्टिंग करने के लिए सूखे पत्ते वगैरह चाहिए होते हैं, आसपास गली में से इकट्ठा कर लिया जाता है। पास में पार्क है, वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भर करके कहीं भी फेंक देंगे या जला देंगे। but you can टू मी बर्निंग लीव्स, बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू इन फील्ड, या पत्ते यहाँ पे भी होता होगा, सूखा, जला सूखा, देते हैं। वो जो सुबह झाड़ू लगती है सड़क में, एक जगह ढेर बनता है और उसको जला दिया जाता है। इट्स अ क्रिमिनल वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो कार्बन है, वो कंपोस्ट बनाएगा। जब वो कंपोस्ट बनाएगा, किसी पौधे की जड़ को न्यूट्रिशन देगा, वो न्यूट्रिशन पौधे को आगे पनपाएगा। सो इट इज़ इंक्रीमेंटल, इट इज़ रीजेनरेटिव। लेकिन जहाँ जिस चीज़ को हमने आग लगाई तो फूंक दिया ना, वहीं कहानी खत्म। और केवल कहानी खत्म नहीं, वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो क्या वो ऐश भी न्यूट्रिटिव नहीं होगा क्या? गुड क्वेश्चन। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू हेल्थ, अलाइव और डेड, एनीथिंग। कोई भी चीज़ आपको दी जाए जिसमें लाइफ है और जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफ वाला ज़्यादा अच्छा होगा। दैट्स द आंसर। ओके। सो अगर वो कार्बन के फॉर्म में मिट्टी में जाता है तो वो मिट्टी में लाइफ लेकर आएगा, और वो ऐश के फॉर्म में जाएगा तो 2-4 मिनरल, लाइफ तो जला दी ना। Wow. This brings me to a very interesting question that is in fact one of the most uh, deep question, I would say. What is it that the nature is teaching us all the time in this chaotic world from your lens? मतलब जो कुदरत है वो हमको क्या सिखा रही है बार 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 बार, जो हम शायद ध्यान नहीं दे रहे। इस मानव विकृत वर्ड गलत होगा, मतलब वेयर ह्यूमंस हैव रियली काइंड ऑफ स्प्रेड ऑल द प्लेसेस। क्या है, व्हाट इज इट दैट द नेचर इज टीचिंग अस? स्प्रेड, द ह्यूमंस आर स्प्रेड ऑल अराउंड, राइट? तो मैं या सो नेचर इज ट्राइंग टू टीच अस मेनी थिंग्स। वन, एक तो अपने अंदर झांको। नेचर में क्या है, सब कुछ साइक्लिकल होता है। और दूसरा होता है इंटरकनेक्टेडनेस, connection between the life and the elements which are not alive. अब अगर आप मिट्टी को क्ले, सैंड, उस पर्सपेक्टिव में देखोगे तो वो अलाइव नहीं है। उसको एबायोटिक बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, और बायोटिक, वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। और ये बहुत सारे कनेक्शंस हैं। पेड़ का मिट्टी से रिश्ता है, मिट्टी का एनिमल से रिश्ता है, एनिमल का पेड़ से रिश्ता है, एंड वाइस वर्सा। Aren't we ignoring connections? Connection with nature, connection with family, with friends, with the spirit above. इंटरेस्टिंग। अर्बन लाइफ में या मॉडर्न लाइफ, सिर्फ अर्बन नहीं, अब तो गांव-गांव में ये you are just scrolling away your time, it is pickling your brain. हम कनेक्शन नहीं तोड़ चुके हैं अपने सारे? मेरे ख्याल से प्रकृति या नेचर हमको ये सिखाना चाह रहा है कि जो कनेक्शंस तोड़ दिए या टूट गए किन्हीं कारणों से, गेट बैक टू योर रूट्स, फाइंड योर रूट्स। इफ यू कैन गेट बैक समवेयर, फाइंड योर रूट्स, फाइंड योर कनेक्शंस। That is what is going to take us forward, keep us healthy. When I say healthy, it's not just the physical health. Yeah, it's the mental. It is the mental health. It is your spiritual health. So nature में सबसे ज़्यादा connected, एक चीज़ दूसरे का खाना है, वो मिट्टी में जाएगा, वापस आएगा। जो कनेक्शन की बात जो आप कर रहे हो, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में हुई, इन आवर कम्युनिटी। There was this
सेवेंथ एट्थ क्लास का बच्चा जिसको एक दूसरे बच्चे ने मार दिया पत्थर से एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग ओके एंड द ब्लीडिंग वाज सो बैड दैट उसकी टी शर्ट पूरी लाल हो गई एंड दिस पेरेंट्स वर लिविंग नेक्स्ट गली दूसरी गली में रहते थे तो मी एंड अनदर फ्रेंड ऑफ माइन यू नो वी काइंड ऑफ हेल्प्ड हिम विद हल्दी एंड ऑल एंड आई क्विकली चेंज हिज टी शर्ट मैं अपने घर से एक टी शर्ट लगा करके उसकी टी शर्ट चेंज कर दी ताकि उसके पेरेंट्स आए तो दे डोंट गेट फ्रीक्ड आउट विद द ब्लड दैट इज इन द टी शर्ट and you know and then they took him, you know, he was hospitalized for a few days and so very recently 4 days back both the parents came to the house totally unexpected वो जो टी शर्ट मैंने उसको दी थी वो पूरी प्रेस होके साफ करके एंड द मदर वाज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड यू नो एंड ऑल द टाइम शी वाज सेइंग कि कौन करता है आजकल कौन करता है आजकल कौन मतलब द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन वी डोंट फील कनेक्टेड विद ईच अदर हम पड़ोसी को नहीं जानते फॉर एग्जांपल एंड यू नो लाइक टू टेल यू फ्रैंकली आई वाज लिविंग इन दिल्ली फॉर फुल टाइम लाइक मैं 7 साल दिल्ली में रहता था एंड देन आई मूव टू सतना दिस वाज अ डेलिबरेट चॉइस टू एस्टैब्लिश माय लैब हियर ऑल दैट आई वाज सीकिंग वाज जेन्युइन कनेक्शन विद पीपल तो जितना जितना बड़े शहरों में जा रहा हूँ उतना ही कनेक्शन कम होता जा रहा है तो आई समटाइम्स स्टिल वंडर कि यू नो कौन बड़ा है और गांव में जाओ तो अजनबी को भी खाना खिला देते हैं वो मतलब माय एक्सपीरियंस आई हैव सच रिच एक्सपीरियंसेस इन विलेज लाइफ एंड ऑल विद माय किड्स ऑल अराउंड यू नो 17 ऑफ अस मेरे से छोटे आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली जो 17 लोग मेरे से छोटे हैं तो वन ऑफ दीज रैंडम डेज आई जस्ट टुक देम टू द विलेजेस वन ऑफ द आउटसाइड विलेजेस एंड हमारा प्रोजेक्ट था खाली हाथ आए हैं खाली हाथ आएंगे पर पेट भर के जाएंगे और ऐसे ही चले गए और एक बच्चे को बोल दिया तुम गांव में जाओ कढ़ाई लेके आओ एक जगह बोला कुछ लेकर के आओ कोई पानी लेके आओ कोई बाल्टी लेके आओ कोई लकड़ी लेके आओ ऑल दीज 5-7 किड्स स्प्रेड अराउंड अलग अलग गांव में जाए और यू वोंट बिलीव पेड़ के नीचे सब कुछ छोटा छोटा सब सामान लेकर के आ गए एंड वी कुक्ड आवर ओन फूड इंटरेस्टिंग एंड किसी ने बर्तन दे दिया किसी ने परात दे दी किसी ने लकड़ी दे दी किसी ने कंडा दे दिया I don't know if it's possible somewhere, you know, and again it boils down to same word what you mentioned few minutes back, connection. तो I think nature से हम शायद जितना जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं गांव वाला इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका environment nature से जुड़ा हुआ है वो कनेक्शन देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं शहर में वो कनेक्शन नेचर के साथ मिसिंग है इसलिए शायद ह्यूमन बींग्स का मिसिंग है तो द लर्निंग दैट आई एम डेराइविंग फ्रॉम योर डाइव डीप कम्युनिकेशन इज भाई नेचर के साथ जुड़ो कनेक्शन बढ़ेगा अपने से बढ़ेगा उसका डिजाइन है बढ़ने का बिल्कुल राइट बिल्कुल सो आई वांट टू एक्सटेंड दिस हाँ आप कुछ कह रहे थे बोले हाँ सो इसी से कनेक्टेड है जब आप ग्रीनरी में होते हो हाँ तो डिस्ट्रेसिंग oh absolutely डिस्ट्रेसिंग होती है देयर इज एम्पल साइंटिफिक प्रूफ्स oh absolutely द अदर इज व्हेन यू वर्क विद योर हैंड्स विद द सॉइल another it is capable of curing depression oh absolutely I have my personal experiences just to give you perspective you know that Maharajpur heritage is there Yes, and I've bought a land also there yes तो मैं कभी कभी वहाँ जाके लेट जाता हूँ राइट आई जस्ट लाई ऑन द फ्लोर एंड माई एक्सपीरियंसेस मेरा ये अनुभव होता है कि जैसे रिचार्जिंग पॉइंट मोबाइल को लगाते हैं तो मोबाइल रिचार्ज होता है ना मेरे पूरा हेड से लेके यहाँ तक ऐसे दिस समथिंग सम वाइब्रेशन हैपनिंग एज इफ यू नो समथिंग इज गेटिंग रिचार्ज्ड एंड इट्स सो हीलिंग नथिंग बस बैरन लैंड मतलब नॉट बैरन मतलब मिट्टी में जाके लेट जाओ so what you're doing is called forest bathing oh yeah absolutely so these are the experiences which I am kind of realizing also जब मैं पहाड़ में होता हूँ और नेचर में होता हूँ तो मेरे को लगता है मेरा दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा है I'm in the creative zone and all that best ideas आएंगे and I come back to my you know so called urban area I'm feeling convoluted I'm feeling like मन नहीं कर रहा चिड़चिड़ापन लग रहा है काम करने का मन नहीं कर रहा all that stuff keeps happening you know तो the same Varun who is in the pahad is operating in a different way and the same Varun who is you know in this so what is the difference it's the environment and it's nature yes so Ritu you know I know this podcast has been very crisp you know एक घंटे में हम क्या ही बात कर सकते हैं because you know your typical workshop takes 3 days 4 days for one to get hands on experience but today you know I have a you know for the audience it might look like you know हम अभी कर रहे हैं but we kind of planned it earlier okay just to let you know but we're going to be but launching not that early but not that early also today morning we decided that we're going to launch an initiative and we're going to be co-creators co-inventors co-partners of that initiative can we talk about it right now or do you want to say anything before we talk about no, that you initiative? go ahead please I'd like you to talk about it okay, please you go ahead all right so this is Uzu we're going to be launching Uzu Forest
from today. And Uzu Forest is an initiative. Our vision is to create 1 million mini forest, inspiring you, inspiring the world to be hands-on support system, to be able to enable humanity create their own forest. And it can happen just by growing few spinach, at your own chat, at your own top. The word mini is a metaphor. The word forest is also a metaphor here. The intent of this is that each one of us start getting connected with the nature, with the mother earth, with the soil, with water, with conservation, with right food, with food which we have grown with love. And we want to build an environment, a ecosystem which enables each other. It's not a one-man show, any which ways. It's something that all of us will pull in our collective energy to create 1 million mini forest. Uh, Frankly, the word Uzu means uh, basically Uzu का full form है Uzu Bazibaka. Some of my close community guys would know it, which means I don't know how, but I will. Similarly, when I'm declaring that we're going to be creating Uzu Forest 1 million ones, I have no idea how we're going to make it happen. But I just believe that if you have the right intent, the the energies of the planet, the energy, the universal elements unfolds, and I'm sure it's going to unfold. And having Ritu on board, I think it's going to be a interesting ride, and I'm up for that adventure. We are up for that adventure. We are up. Right? So, Yeah. congratulations, Ritu, for initiating this and for giving me Congratulations to that Ritu. confidence that we can do it. And our responsibility is going to be together making it happen. Frankly, I have no idea how it's going to be planned and all. But today we are just declaring it that we're going to make it happen. We will. I would request you to talk about why you think this should exist. अभी हमने बात की अर्बन लिविंग की, कनेक्टेडनेस नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, 10 तरह की बीमारियां हैं. तो एक छोटा फॉरेस्ट बेदिंग की बात की, आपकी क्रिएटिव एनर्जी को आपको ग्राउंड करने के लिए, आपका वो कनेक्टेडनेस लाने के लिए, और केवल हम नहीं, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, सबको एक्सेस होना चाहिए वो ग्रीन स्पेस के लिए. It should be our fundamental right. Why? Because it does so much for us. जहाँ से आए हैं वहीं जाना है. और ये सिंबल है, छोटा छोटा मिनी फॉरेस्ट अगर हम बना सकते हैं, खास तौर से शहरों में. It is the need of the hour. Yeah. और वो एक लर्निंग स्पेस है. जैसे फॉरेस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले भी बोले थे, डाइवर्सिटी, सॉइल, वाटर, एयर एंड द कनेक्शंस. Eventually it is all about the connections, dependence, interdependence. That is what forest is all about. So ये mini forest केवल पेड़ उगाना नहीं है. प्लांटेशन ड्राइव्स तो अनगिनत चल रहे हैं, सब्जी भी आप लगा लेंगे, बट दिस इज़ कि वो इंटरडिपेंडेंस आप कैसे फील करते हैं, कैसे दिखाते हैं. अब यहाँ भी अगर हमने आज स्टैब्लिश कर रहा है, हमने डिसाइड किया है कि हम मिल के बनाएंगे, हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम इंडिविजुअली नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं. वी विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बट विल वर्क टुगेदर, एंड देन ओनली इट विल हैपन. सो दोज आर द लर्निंग्स दैट कम. दीज आर नेचर्स लिटिल लैब्स दैट वी क्रिएट. वाओ. खाने से लेकर के मेंटल हेल्थ तक, स्पिरिचुअल हेल्थ तक, वो मिनी फॉरेस्ट बिकम्स योर स्पेस. दैट स्पेस, टेकिंग फ्रॉम वन ऑफ योर बुक्स ओनली. The deep work room. Yeah. The focus. The focus. Yeah. Focus to flourish is what I remember. Right. These spaces, you need to create that space. वो जो environment की बात है, अगर environment अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे. If you can create one mini forest here in Satna, and lot of kids can go, शांति से बैठ के पढ़ना ही है या discussion करना है. It enables. It rejuvenates you. Rejuvenates you. Completely. नई जगह मिल रही है तो छत पे बना लेंगे. Absolutely. या balcony में बना लेंगे. All right. कहीं ना कहीं तो space आएगी. The size of space does not matter. Yeah. Recreation of that system matters. Got it. तो वो हम करेंगे. We are almost ending the podcast now, and I'm euphoric, happy, excited,
and little goosebump is happening. कैसे 1 million करने वाले हैं. But I genuinely believe in the power of declaration. And again, as Ritu said, it is not I am going to do it. I'm just initiating it. There are very interesting initiatives across the globe. Um I don't know, Ritu, if you're aware of the Farm to Table initiative, the Edible Schoolyard Project initiative, uh, which started from California, from one of my very favorite lady. I'm missing her name. She also runs this beautiful cafe, Sandra. मैं उनकी Annie. It's in masterclass.com also. Her entire class is there. I forgot her name. I think this entire initiative where the people are taking off, doing in the various forms like plantation drives. Sadhguru has started some very powerful initiatives. The idea is that you want to just extend this, and again co-create along with these organizations also and individual also. I love the word Uzu, so it kind of gives me that feeling of for Uzu Forest is sounding like very exciting to me. So personally, I would love to uh, extend this as a body of school where people can online forums in communities, and also however I think we'll be able to make it happen. One thing that I want to thank you today is you have reignited my 7th block. So the 7th block that we do at Proactive, as most of you would know, that I educate people on something called 8 building blocks. The 7th one is called Live Health. And in Live Health, we have this initiative of, with the vision of having everyone take responsibility of their own health, right? Oh, excellent. Yes. And there's this initiative called Farm to Fork. And today we have started this Uzu Forest, which has expanded that vision to much bigger, canvas and also a responsibility. So I want to really genuinely thank you for that. And I think I'm going to give my all heart in and out to make this work with you. And as you said, it's going to be a co-creative process. I'm all game for it. Yeah, that's where I am right now. Anything that you'd like to talk about? All I want to say is thank you for having me here. Yeah. And I'm looking forward to this initiative. Yeah. मिलके आगे अच्छा काम करते हैं. और जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट कीजिए. मेरे नज़रिए से देखिए तो ये टिपिकली लाइफ स्किल है. अगर पालक भी उगा लोगे तो एक लाइफ स्किल है. आप अपने हाथ से उगा के खाएंगे, कंप्लीट क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में है. कंपोस्टिंग भी एक लाइफ स्किल है. अपनी गंदगी क्यों बाहर फेंकना, जबकि वो एक रिसोर्स है. क्लोज द लूप. कुछ भी आप करिए, वो एक लूप, उसमें सोचिए कि सब कुछ लूप है. वही नेचर सिखाता है कि एवरीथिंग व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. कूड़ा फेंकोगे वापस कूड़ा ही आएगा अपने पास में. तो वहाँ से ये एक इंडिविजुअल लेवल पे हम सब कर सकते हैं. छोटा छोटा टेक हेल्प ऑफ एनीथिंग. देयर आर कंपोस्टिंग सिस्टम्स अवेलेबल. छोटी सी बाल्टी में भी है. गूगल करिए, बहुत लोग बता देंगे. डेली डंप है बैंगलोर बेस्ड, वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए. यू जस्ट नीड दैट कंपोस्टर, दैट लिटिल कंपोस्टर विच कैन सिट. वहीं किचन में बैठ सकता है, कहीं उसको आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है. स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, कुछ नहीं है. So through your forum, through this podcast, we'll add the resource. I would request everybody to take that little step. Absolutely. To take our cities, our areas forward. Ritu, I would like to share one interesting thing that you may not be aware of. I did start growing my food. I've done variety of green vegetable, exotic vegetables also. And some of the best thing that used to happen was when I would grow them, it would take me anywhere from 60 days to 90 days for them to harvest. And when I would just go and give it to my friends, their mom, as my gift to them, and the smile that would come out from their faces, that would be like very satisfying. Yeah. And they're like, how much? I'm like, dude, it's my gift for you, And I've been able to share it with 13, 14, 15 families, my Chamari extended family, my Sandeep Chacha, and all the other people and all. And it is such a wonderful, soulful experience. And the best thing is, again, I'm able to connect. My connection with them by sharing my food produce has enhanced. Yeah. So it is like, again, coming back to the
अंडरस्टैंडिंग. तो जस्ट वांटेड टू शेयर विद द ऑडियंस ऑल्सो कि ये सच में बहुत अच्छा अनुभव होता है जब आप खुद का खाना बनाते हैं और जब वो एक्सेस होता है जो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बांटते हैं. सो इमेजिन सतना में फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये सतना में हम शूट कर रहे हैं, यहाँ पे 1000 फूड फॉरेस्ट हैं और 1000 लोग 10-10 लोगों को बांट रहे हैं. 10,000 लोगों के पास खाना आ रहा है खुद का बनाया हुआ. कितना अमेजिंग होगा, मतलब और जो रिलेशनशिप जो हमारे एक दूसरे के साथ होगी. सो इस विजन के साथ कि हम सतना से और पूरे वर्ल्ड में हम फूड फॉरेस्ट बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा. कनेक्शन बढ़ेगा एक दूसरे के साथ, ज़रूरी है ना, और मज़ा भी आएगा. तो दैट्स द इंटेंशन ऑफ दिस पॉडकास्ट आई वुड से. और थैंक यू एवरीवन, Yeah, थैंक let's यू. see some action. Let's see some action. So looking forward. I'd like to acknowledge you. I'd like to acknowledge my team here for shooting this podcast. Thank you, buddies. So I'd like to conclude this with this prayer, with all of us doing together, that may the earth, be more greener, more richer, more healthy. With this intention, let's observe few minutes, few seconds silence. Thank you, Ritu. Thank you so much for having me. I had fun. All right, let's close it. Yeah.